Hello guys, now I am going to explain you how do plant absorb water. प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और उनके टेक्निक क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं. सो बेसिकली प्लांट शोज एब्सॉर्प्शन ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट पाथवे. one is Apoplast pathway, and second one is Symplast pathway. One is Apoplast pathway and second one is Symplast pathway. So what is meant by Apoplast and what is meant by Symplast, I am going to tell you in detail. See, first of all I will tell you what is the Apoplast pathway. प्लांट जनरली वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. तो प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए दो तरीके होते हैं. एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे. ये देखिए प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. रूट हेयर से लेके एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल और उसके बाद जाइलम टिश्यू. तो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट की टेक्निक होती है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में दोनों में यही मेथड होती है. लेकिन जो मूवमेंट होती है वाटर की वो अलग अलग होती है. ठीक है, मतलब टेक्निक जो होती है वो अलग होती है. इन केस ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे, water moves through intracellular spaces. See, now water will enter from this root here and then it will go into this intracellular spaces. From this intracellular spaces it will travel towards the xylem. See, water enter into the root here, then it will enter into this first layer. What is that? First layer, epidermis. Yes, and then from epidermis it will enter into the second layer, that's called as cortex. From second layer it will enter into the third layer, that is endodermis. From third layer it will enter into the fourth layer, that is pericycle, and from the fourth layer it will connect directly to the xylem element, and xylem will carry this water and mineral to the topmost part of a plant body from intracellular spaces. This is called Apoplast pathway. Apoplast pathway का मतलब होता है कि वाटर और मिनरल ये रूट हेयर्स के थ्रू अंदर आते हैं और जहां पे उनको स्पेस मिलती है वहां से वो ऊपर चढ़ते जाते हैं. अब ये देखिए रूट हेयर्स के बाद ये पहली लेयर को क्रॉस करते हैं जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और फिर पहली लेयर को क्रॉस करने के बाद ये सेकंड लेयर को क्रॉस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और फिर थर्ड लेयर को क्रॉस करते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, उसके बाद फोर्थ लेयर को जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकल, और फाइनली ये जाइलम एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं. तो इनकी भी मूवमेंट रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम यही है. सिम्प्लास्ट की भी वही रहेगी, लेकिन सिम्प्लास्ट में थोड़ा अलग है. ये देखिए क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम cell to cell through plasmodesmata. अब आप यहां देखिए वाटर सबसे पहले कहां एंट्री करता है, रूट हेयर्स में. नाउ वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर्स. दिस वाटर इज मूविंग फ्रॉम रूट हेयर्स इनटू epidermis. Is it clear? First layer of epidermis. And from one epidermis cell it is entering into another epidermis cell, then it is entering into another epidermis cell, then it is traveling to the upside to the cortex, and from the cortex it is traveling towards the endodermis, third layer, and from the endodermis it is entering into the pericycle, fourth layer, and from the pericycle it is entering into the xylem element. So the movement of water organs are same: root, epidermis, cortex, endodermis, pericycle. But here the movement of water takes place from one cell to another cell to third cell to the fourth cell with the help of this organelle called plasmodesmata. What is this plasmodesmata? Plasmodesmata are the organelle which connect one cell to another cell and that help in the transport of a water from one cell to another. Yes. सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर की मूवमेंट कैसी होती है, रूट हेयर्स में से अंदर आता है वाटर और उसके बाद वो रूट हेयर्स में से एपिडर्मिस सेल में एंट्री करता है.
एपिडर्मिस में से एक सेल में से दूसरे सेल में से तीसरे, उसके बाद वो ऊपर वाले सेल में जाते हैं जैसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के थ्रू वो एंडोडर्मिस में जाते हैं और फिर फोर्थ लेयर पेरीसाइकिल में जाते हैं और उसके बाद डायरेक्टली जाइलम को कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में फर्क ये है कि सिम्प्लास्ट पाथवे में एक वाटर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है वाया वन ब्रिज। दिस ब्रिज इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी है क्योंकि ये दो प्लांट सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। अब ये सवाल आता है कि ये वाटर तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन उसके साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? दो टेक्निक से, एक तो पैसिव एब्सॉर्प्शन या तो एक्टिव एब्सॉर्प्शन। पैसिव एब्सॉर्प्शन अगर होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मतलब वो हम डिफ्यूजन या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या तो इम्बिबिशन से करेंगे। और अगर एक्टिव एब्सॉर्प्शन करना है और तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी का लॉस होगा। तो ये है हाउ डू प्लांट एब्सॉर्ब वाटर। प्लांट एब्सॉर्ब वाटर बाय द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। आप समझ गए कि इसे सिम्प्लास्ट क्यों कहा है हमने? आपको ध्यान में आया सिम्प्लास्ट क्यों कहा है? ये देखिए, ये काफी सारे सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए ना। ये देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पांचवा सेल है। ये सभी सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। ये वाली सेल यहाँ कनेक्ट हो गई, ये वाली सेल यहाँ कनेक्ट हो गई, ये यहाँ कनेक्ट हो गई और ये यहाँ कनेक्ट हो गई। तो मान लो अगर हमें न्यूट्रेंट या तो वाटर यहाँ से यहाँ भेजना है तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से यहाँ से इस वाली सेल में, इस वाली सेल से इस वाली सेल में, डायरेक्टली यहाँ पे। तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। So dear friends, now we are going to discuss about water movement up a plant. Yes, basically हमने अब तक ये चीजें तो समझ ली है कि xylem is responsible for conduction of water and mineral from root to the almost all the vascular parts of a plant body. Means almost all the topmost part of a plant body. It may include a stem, it may include a branches, it may include a number of a leaf. So xylem conduct water and mineral from root to the topmost part of plant body. It is clear now, but it is still a passive process or it is now active process. That is a one sort of a questions. That is a one sort of a confusions. But I'll solve your confusion. Yes, हमें अब तक ये पता चल गया कि xylem टिश्यू का काम होता है वाटर और मिनरल को रूट से लेकर टॉप मोस्ट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन अभी तक इस चीज में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पैसिव है या तो एक्टिव है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले अगर हम वाटर मूवमेंट हम देखें तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट देखनी होती है एसेंट ऑफ सेप। क्या देखनी होती है? एसेंट ऑफ सेप। ये देखिए, मैं आपको इस टॉपिक में 4 अलग अलग चीजें पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी। सबसे पहले एसेंट ऑफ सेप, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रूट प्रेशर, उसके बाद गटेशन, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपिरेशन पुल, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन कंसेप्ट क्या होती है। तो बेसिकली ये है एसेंट ऑफ सेप। अब एसेंट ऑफ सेप का मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन दैट दिस वन इज अ प्लांट एंड दिस वन इज द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी एंड दिस वन इज लीफ ऑन द प्लांट। दिस वन इज द लीफ ऑन द प्लांट एंड दीज आर द primary, secondary, tertiary root in the plant. Okay, what does it mean by ascent of sap? So ascent of sap can be defined as movement of sap from root movement of sap from root to aerial parts of plant body against what? Gravity. This is called ascent of sap. ये देखिए क्या है? मूवमेंट ऑफ अ सैप। तो सबसे पहले आप सैप का मतलब समझ लीजिए। सैप मीन्स वाटर प्लस मिनरल,
वाटर प्लस मिनरल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज सैप। हम जो नारियल का पानी पीते हैं ना, यस, ग्रीन नारियल का, कोकोनट वाटर है, तो नॉर्मल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं वो नारियल भी, तो इन नारियल के अंदर वाटर और मिनरल काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसे हम सैप कह सकते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ सैप मींस मूवमेंट ऑफ अ वाटर प्लस मिनरल। सो मूवमेंट ऑफ अ सैप फ्रॉम रूट टू द aerial parts means topmost part of a plant body, aerial parts of a plant against gravity, this is called ascent of sap। तो देखिए ये जो वाटर की जो मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, ये ग्रेविटी के अपोजिट हो रही है। अब ये देखिए आप, हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है जो हमारे हार्ट से नीचे है, तो हमारे ब्लड वेसल स्पेशली वेन, वो ब्लड को नीचे से लेके ऊपर तक लेके आते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। लेकिन हमारे वेन में क्या होते हैं, वेन में वाल्व होते हैं जो ब्लड को ऊपर कैरी करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ऐसी चीज, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो वाटर को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो ये वाटर को ऊपर जो लेके जाते हैं वो होते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू वाटर को रूट में रूट हेड्स होते हैं, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, और जैसे ही वाटर और मिनरल अंदर आते हैं उनको जाइलम एज अ कंडक्टिंग टिश्यू उनको प्लांट के सभी पार्ट्स तक, ऊपर के पार्ट्स तक लेके जाने का काम जाइलम करते हैं, बिकॉज जाइलम का ये काम ही है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारी एसेंट ऑफ सेल। क्लियर हो गया क्या एसेंट ऑफ सेल? Ascent of sap can be defined as it is nothing but the movement of a sap means water plus mineral from root to the aerial parts of a plant body against gravity, against force of gravity या तो against gravity, this is called ascent of sap। तो root hairs, then root and then stem and ultimately reach to the branches and leaf। तो water की जो movement होती है concept continuously होती है। अब आप अगर ascent of sap concept समझ गए तो आप रूट प्रेशर भी जल्दी समझ जाओगे, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड एसेंट ऑफ सैप, रूट प्रेशर इज डिपेंड ऑन एसेंट ऑफ सैप। व्हाट डज इट मीन बाय द रूट प्रेशर गाइस? रूट प्रेशर क्या है? आप टेक्निकली तो मतलब तो समझ गए होंगे। रूट प्रेशर, रूट के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। अब आप ये देखिए, ये है रूट हेयर्स, ठीक है, और ये है रूट, ये है स्टेम, ये हो गए ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस के बाद ये क्या होगा, ये हो गया पीटियोल, मतलब स्टॉक ऑफ लीफ, और ये क्या हो गया, ये हो गया लीफ, और लीफ में ये वाले क्या है, ये वाले हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब ये देखिए, आपको रूट प्रेशर में ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ये देखिए, व्हाट इज रूट प्रेशर? यस, सी when root hair absorb the water, this water goes into the root, and root transfer this water to the stem transfer this water to the branch, and branch transfer this water to the petiole transfer this water to the leaf, and leaf transfer this water into the stem. Now stem undergo one process called transpiration. So during transpiration, from the stomata water goes out in the form of water vapor, so water is going out, water is H2O, water is going out in the form of vapor. So continuously water is evaporating from the leaf, so leaf is withdrawing the water from the petiole is withdrawing the water from the branch is getting water from the stem is getting water from the root, and root is getting water from the root hair, and root hair is again absorbing the water from the, that is from the soil. So continuation flow of water from the root up to the stem or up to the stomata. This generates a pressure in the root. This pressure is called root pressure. I'll just tell you definition. Continuous absorption and transport of water from root to stomata of leaf generates pressure on root. This is called
दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। यस, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब ये देखिए कि अगर सॉइल में से रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बेसिकली वाटर कहाँ जाएगा, वो जाएगा रूट पे, और रूट में से वो कौन कंडक्ट करेगा, जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू कैसे ट्रांसफर करेंगे वाटर को, स्टेम, फिर ब्रांच, फिर पिट्यूल, फिर लीफ, लीफ के बाद स्टोमेटा, और स्टोमेटा में से वाटर बाहर निकल रहा है तो स्टोमेटा कहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, यस स्टोमेटा एब्जॉर्ब कर रहा है लीफ में से, लीफ कहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, पिट्यूल, पिट्यूल कहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्टेम, स्टेम कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रूट्स, रूट कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रूट हेयर में से, रूट हेयर वाटर कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल में से। सो कंटिन्यूअसली रूट हेयर सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और स्टोमेटा में से वाटर बाहर इवोपरेट होते जा रहा है ट्रांसपिरेशन टेक्निक के थ्रू। तो जैसे वाटर इवोपरेट होते जा रहा है, नीचे से कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब भी होते जा रहा है। तो ये जो कंटिन्यूएशन वाटर का जो फ्लो होता है ना, तो रूट के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, उस वाले प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं उसे, रूट प्रेशर। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द सॉइल लेयर, ठीक है, दिस इज द सॉइल लेयर। अगर आप इस प्लांट को यहां से कट करो तो एक लिक्विड बाहर आएगा, यस, अ लिक्विड विल कम आउट। दिस लिक्विड कमिंग आउट, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड exudation, exudation, also called as a bleeding, also called bleeding। अब आप ये देखिए, हम जब हमारा ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करते हैं तब हम यहाँ पे काफ बांधते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ से जा रहा है तो काफ यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि हमारे बॉडी में इस वक्त ब्लड प्रेशर कितना है। सेम वे अगर हम यहाँ पे अगर कट कर देते तो यहाँ से क्या निकलेगा, ब्लीडिंग होगा ना। सेम वे प्लांट में कंटिन्यूअसली वाटर और मिनरल रूट से लेके स्टोमेटा तक कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं, और अगर हमने बीच में से कहीं से कट कर दिया तो लिक्विड बाहर आएगा, जिस टेक्निक को हम कहते हैं एक्सुडेशन, और कभी कभी बॉटनी में ब्लीडिंग वर्ड भी यूज करते हैं, और एक्चुअली ब्लीडिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ब्लीडिंग वर्ड इज रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड। यस, सो दिस इज एसेंट ऑफ सेल एंड दिस इज रूट प्रेशर। आई होप सो आपको क्लियरली समझ गया होगा। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल ये दोनों चीजें समझ गए तो आपको ट्रांसपिरेशन पुल भी इजीली समझ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन पुल इनसे रिलेटेड ही है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन पुल? ट्रांसपिरेशन पुल, एक्चुअली पुल का मतलब होता है प्रेशर, पुल का मतलब होता है प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल, सी व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन पुल? continuous flow, see, continuous evaporation of a water from the stomata of leaf generates a gap of a 20 atmosphere. This gap is called transpiration pool. मैं definition लिखता हूँ पहले। See, continuous evaporation of water, continuous evaporation of water from stomata of leaf, continuous evaporation of water from stomata of leaf generates gap of 20 atmosphere. This is called transpiration pull, transpiration pull। ये देखिए मैं आपको मार्कर चेंज करके बताता हूँ। सी, यहाँ पे समझने से बेटर है आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये है एक लीफ, ठीक है, और ये लीफ की है पिटियोल, और ये पिटियोल में से ये है ब्रांच, और ब्रांच में से ये है स्टेम, और स्टेम में से है रूट। तो रूट में से वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? प्लांट के लीफ के स्टोमेटा तक जा रहा है। तो देखिए जैसे स्टोमेटा में से वाटर एक ड्रॉप बाहर आता है, ड्रॉप नहीं हम उसे क्या कहेंगे, वेपर फॉर्म में कहेंगे। तो जैसे वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है तो यहाँ पे गैप तैयार होता है, यस, यहाँ पे गैप होता है। तो ये जो गैप है ना, ये 20 एटमॉस्फेयर का गैप है। 20 एटमॉस्फेयर मतलब अगर 20 एटमॉस्फेयर की एयर
जहां पे हम स्टोर करें, तो जितना गैप बनेगा ना, जितनी स्पेस 20 एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ये देखिए, अभी फिर से आप यहां पे देखिए, वाटर इज moving from the root hairs to the root and then to the stem. From the stem it is going to the branch, and from branch it is going into the petiole, and from petiole it is going into the stomata of leaf. अब ये स्टोमेटा जो लीफ के नीचे के सरफेस पे होते हैं, वो वाटर को वेपर फॉर्म में बाहर फेंक देते हैं, वाटर को वेपर फॉर्म में बाहर फेंकते हैं। तो जैसे उन्होंने वाटर को बाहर फेंका, तो यहाँ पे गैप तैयार होता है। यहाँ पे क्या तैयार होता है, यहाँ पे गैप तैयार होता है, और ये गैप कितना होता है, 20 एटमॉस्फेयर का होता है, और इस गैप को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब आप ये सोचोगे कि ट्रांसपिरेशन पुल, ये गैप फिर भरता कैसे? तो ये स्टोमेटा कहां से विड्रॉ करेंगे वाटर, ये स्टोमेटा लीफ में से पानी को एब्सॉर्ब करेंगे, और लीफ कहां से पानी को एब्सॉर्ब करेगी, पिटियोल में से। पिटियोल पानी कहां से एब्सॉर्ब करेंगे, ब्रांच में से। ब्रांच कहां से पानी एब्सॉर्ब करेंगे, स्टेम में से। स्टेम में से पानी कहां पे आएगा, मतलब स्टेम में पानी कहां से आएगा, रूट में से। रूट में पानी कहां से आएगा, रूट हेयर में से। रूट हेयर कहां से पानी को एब्सॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली सॉइल में से। सो कंटिन्यूअसली सॉइल टू द रूट हेयर, टू द रूट, टू द स्टेम, टू द ब्रांच, टू द पिटियोल, टू द लीफ, टू द स्टोमेटा, ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते ही रहता है। और ये जो गैप है ना, ये गैप कभी भी भरेगा नहीं, क्योंकि स्टोमेटा कंटिन्यूअसली वाटर इवोपरेट करते ही रहते हैं। हाँ, अगर स्टोमेटा जैसे क्लोज होते हैं नाइट टाइम में, उस वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये 20 एटमॉस्फेयर की गैप हमेशा जनरेट होती ही रहती है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। एक चीज याद रखिए, अगर हमें ट्रांसपिरेशन को स्टडी करना है, तो हमें एक थियरी स्टडी करनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ cohesion tension theory, and this cohesion tension theory was given by the Dickson and Joly। कौन है ये दोनों? Dickson and Joly was the two scientists। Dickson and Joly ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने cohesion tension theory स्टडी की थी। आपको मैं मतलब बताता हूँ cohesion tension का। cohesion, attraction between two similar molecule is called cohesion। Attraction between two similar molecule is called cohesion। For example, one is a water and second one is a like in a water there is a, what is cohesion? Attraction between two similar molecule is called cohesion। Yes, दो similar molecule के आपस में attraction को हम कहते हैं cohesion। Like a water, in water there are two hydrogen and one oxygen। वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेजन। यस, और अडेजन, एक्चुअली एक कंसेप्ट होती है कोहेजन और एक कंसेप्ट होती है अडेजन। तो अडेजन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अडेजन। वन इज अ वाटर एंड सेकंड वन इज अ लिग्निफाइड सेल वॉल ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट सेल वॉल और वाटर ये दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल है ना। क्यों डिसिमिलर है? प्लांट ये लिविंग मटेरियल है और वाटर तो नॉन लिविंग मटेरियल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग है, प्लस वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉन लिविंग मटेरियल है। तो ये दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्शन होना, इसे हम कहते हैं अडेशन। और अगर सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो इसे हम कहते हैं कोहेजन। तो ट्रांसपिरेशन पुल को समझने के लिए हमें कोहेजन टेंशन थियरी स्टडी करनी पड़ती है, जो किसने दी हुई थी? डिक्सन एंड जोली साइंटिस्ट ने दी हुई थी। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ इस टॉपिक के अंदर, गटेशन। तो गटेशन समझने के लिए आपको ट्रांसपिरेशन समझना काफी जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको राइट और लेफ्ट साइड में कुछ बेसिक बातें समझाता हूँ। राइट साइड में आपको मैं गटेशन समझाता हूँ, लेफ्ट साइड में आपको ट्रांसपिरेशन बता देता हूँ। यस, पहले ट्रांसपिरेशन समझ लीजिए। इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये देखिए, कभी भी ट्रांसपिरेशन समझने के लिए और गटेशन समझने के लिए हमें लीफ का यूज करना पड़ता है। लीफ के नीचे के साइड में क्या होते हैं? नीचे के साइड में होते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। और ऊपर के सरफेस पे क्या होते हैं? ऊपर के सरफेस पे हाइडाथोड नाम के ऑर्गन होते हैं, हाइडाथोड। और ये हाइडाथोड क्या करते हैं? ये करते हैं गटेशन। आई बात समझ में? पहले मुझे देखने दीजिए, कैमरा में दिख रहा है आपको? यस। सो ये दोनों डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, पहले
evaporation of a water in the form of water vapor through stomata of leaf, it is called transpiration. अगर वाटर वेपर फॉर्म में लीफ के स्टोमेटा में से निकलता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. If a water evaporate in the form of a water drop through hydrophore of leaf, then it is called guttation. अगर वाटर ड्रॉप फॉर्म में, डायरेक्टली ड्रॉप फॉर्म में बाहर निकलता है हाइड्रोफोर के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं गटेशन. ये देखिए, ट्रांसपिरेशन, गटेशन. Evaporation of water in the form of water vapor through stomata of leaf, it is called transpiration. Evaporation of water in the form of water drop through hydrophore of leaf, it is called guttation. Transpiration generally takes place at a daytime. Guttation takes place at a night time. It also takes place at a evening time, and it also takes place at a daytime. But when there is a too much coolness, environment is too much cool. ट्रांसपिरेशन दिन में होता है मोस्ट प्रोबेबली, गटेशन नाइट में होता है. गटेशन कभी कभी मतलब इवनिंग टाइम में भी होता है, गटेशन कभी कभी डे में भी होता है. लेकिन कब? जब एनवायरनमेंट पूरा कूल हो, जैसे ठंडियों की सीजन होते हैं तो बारिश के सीजन होते हैं. तो बारिश के सीजन में होता क्या एक्चुअली, देखो पानी नीचे से, देखो हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, हम 3 4 5 लीटर हमने पानी पी लिया, तो हम यूरिनेशन तो जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे. अगर हम पानी पी रहे हैं तो यूरिनेशन ऑब्वियसली जाएंगे. लेकिन अगर हम यूरिनेशन नहीं जाते हैं तो कम से कम हमारे स्किन में से पर्सपायरेशन होता है, पसीना निकलता है समर सीजन में. ठीक है, समर सीजन में पसीना निकलता है. मतलब कोई भी सोर्स हो, हमारी बॉडी में से पानी बाहर तो निकलेगा अगर हम पी रहे हैं. तो प्लांट भी कंटिन्यूअसली पानी एब्जॉर्ब करते हैं. पानी पीते नहीं है प्लांट, लेकिन प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको भी पानी को बाहर फेंकना पड़ेगा. फिर वो ट्रांसपिरेशन हो या फिर गटेशन हो, डे टाइम हो तो ट्रांसपिरेशन, नाइट हो तो गटेशन होगा. और अगर समर सीजन है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, गटेशन कम होगा. लेकिन विंटर या तो रेनी सीजन है तो गटेशन भी ज्यादा होगा. तो दैट इज गटेशन. रिमेंबर, इन केस ऑफ गटेशन, हाइड्रोफोर इज आल्सो नोन एज अ चॉक ग्लैंड. गटेशन करते समय हम हाइड्रोफोर को चॉक ग्लैंड भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, hydrothode is also known as the chalk gland just because a chemical material comes out of a hydrothode is a white in color, and that white color, it's actually due to the presence of a starch which is white in color. And white color we generally compare with a chalk and duster, blackboard chalk. So that chalk is a white in color, therefore we are calling hydrothode as a chalk gland. Clear everyone? So this is about water movement up a plant, in which I have explained you ascent of sap, root pressure, transpiration pull, and their theory as well as guttation. Hello guys, so now I am going to explain you one of the most important topic among the lesson, that's called as a transpiration. Yes, so क्या होता है ट्रांसपायरेशन, हम डिटेल में देखते हैं. इस वाले टॉपिक में मैं आपको ट्रांसपायरेशन की कंसेप्ट, ट्रांसपायरेशन के टाइप, structure of leaf, structure of a stomata, yes, and at the end mechanism of opening and closing of stomata easily समझा दूंगा काफी कम समय में. Yes, let's begin. What is transpiration? See, पहले concept से definition समझ लीजिए. Transpiration का मतलब होता है evaporation of water, और आप लॉस ऑफ वाटर भी कह सकते हो. काफी बुक में लॉस भी लिखा होता है. लॉस ऑफ वाटर या तो इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, in the form of vapor through aerial parts of plant or stomata of leaf is called transpiration. Is called transpiration. Yes, अब आप ये देखिए, ये हमारे सामने एक ट्री है. अब उस ट्री में ये ब्रांचेस के ऊपर एक लीफ है.
एक लीफ आए मिनटों से हजारों लीफ होगी, ठीक है। अब इनके ऊपर है ना जनरल डिस्कशन मत कीजिए। तो एक ब्रांच प्लांट के ऊपर ब्रांचेस है, ब्रांच के ऊपर हजारों लीफ है। मैंने आपको एक लीफ जूम करके बताइए जिससे मैं आपको ट्रांसपायरेशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रांसपायरेशन ये देखिए, इवोपरेशन ऑफ वाटर मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर का लॉस हो रहा है, कौन से फॉर्म में? वाटर का लॉस हो रहा है वेपर फॉर्म में थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट के सभी ऊपर वाले पार्ट्स में से वाटर का लॉस हो रहा है। या तो स्टोमेटा ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, लीफ के नीचे के साइड में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा में से वाटर वेपर के थ्रू, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, ट्रांसपायरेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट evaporation of a water or loss of water in the form of a water vapor, in the form of a vapor through aerial parts of a plant body, means upper parts of a plant body or stomata of leaf, it is called transpiration. ट्रांसपिरेशन का सिंपल मतलब होता है लीफ के स्टोमेटा में से पानी वाटर फॉर्म में बाहर निकलना, या तो प्लांट के ऊपर के हिस्से में से, ऊपर के कुछ पार्ट्स में से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना। इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्लियर होगा आपके माइंड में? जनरली लीफ जो होती है, लीफ के नीचे के साइड पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और हाँ उन होल्स को नो डाउट हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, काफी बारीक होते हैं, वो काफी छोटे होते हैं। उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। बेसिकली ट्रांसपायरेशन के 3 टाइप होते हैं। Basically transpiration fall under 3 main category, and this transpiration is one is a cuticular transpiration, second one is lenticular transpiration, and third one is stomatal transpiration. See, what is cuticular transpiration? Cutin is nothing but the small cells present in the woody parts or either older plant or either older fruit. Cuticle एक छोटे छोटे माइन्यूट सेल्स होते हैं जो प्लांट के ओल्ड प्लांट के बार्क के ऊपर, मतलब ओल्ड प्लांट के बाहर की स्किन के ऊपर, या तो कुछ ऐसे फ्रूट जो काफी ओल्ड हो चुके हैं उनके ऊपर ये क्यूटिन नाम के सेल्स होते हैं। और अगर क्यूटिन से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटिन से अगर ट्रांसपायरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसका रेट ओनली 1% है, 0.1 to 1% है। और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? लेंटिकुलर इज अ टाइप ऑफ अ ट्रांसपायरेशन which takes place through the lenticell. There are some you can say herbaceous stem in which small cell lenticels are present on the stem, and if transpiration takes place through such a cells, it is called lenticular transpiration. Most probably transpiration 90 to 92% transpiration स्टोमेटा से होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल एक चीज समझ लीजिए, प्लांट अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, तो 98% प्लांट में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ओनली 2% यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। प्लांट अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब करे, मान लो प्लांट ने 100 ml वाटर एब्जॉर्ब किया, तो 100 में से 98 ml तो डायरेक्टली इवोपरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिर्फ 2 ml पानी, मतलब 2% जो वाटर होता है ना, वो ही पूरे प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद ट्रांसपायरेशन क्यों ना हो, गटेशन क्यों ना हो, फोटोसिंथेसिस क्यों ना हो, ग्लाइकोलिसिस क्यों ना हो, क्रेब्स साइकिल क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों ना हो, प्लांट में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उन सभी रिएक्शंस के लिए वाटर सिर्फ 2% ही यूज में आता है, बाकी 98% तो वाटर लॉस्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। So guys, here we discuss now about the structure of a leaf. So basically I would like to tell you, in case of a monocotyledon plant, the leaf is called as isobilateral leaf, means both the side are similar. In case of dicotyledonous plant, leaf is dorsoventral means dorsal and ventral, both the surface are different from each other. Why? I'll tell you.
ventral surface of a leaf is almost too much green in color because it directly faces to the sunlight. Whereas dorsal surface is slightly darker in color just because it doesn't face to the sunlight. So it might show different type of a color, you can say based on the photosynthetic pigment present in the leaf or some chromophoric compound present in the leaf. मोनोकोट में जो लीफ होते हैं वो आइसोबायलेटरल लीफ होते हैं, मतलब दोनों साइड एक जैसे दिखते हैं. लेकिन जो डाइकोट लीफ होते हैं, डाइकोट प्लांट की जो लीफ होते हैं वो डोर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड अलग अलग होते हैं. उनका वेंट्रल साइड सनलाइट को फेस करता है, इसके लिए वो ज्यादा ग्रीन होता है, और डोर्सल सरफेस जो होता है वो सनलाइट को फेस नहीं करता, इसके लिए उसका कलर थोड़ा शेड कम होता है. आइए देखते हैं. बेसिकली लीफ इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, अपर एपिडर्मिस and lower epidermis. Upper epidermis, lower epidermis. So upper epidermis, between upper epidermis and lower epidermis, there is a presence of a mesophyll tissue. In the leaf, between the upper epidermis and lower epidermis, there is a presence of mesophyll tissue. Now this mesophyll tissue is further differentiated into two type of a cell, such as a palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma are the hard, they are the hard cell, and spongy parenchyma on self name indicate they are soft one. Spongy parenchyma are located above the lower epidermis and palisade parenchyma are located below the upper epidermis. Now below the lower epidermis, nearby the lower epidermis, there are some openings are present in the leaf. They are called as a stomata, and stomata are playing very important role in the process of transpiration. देखिए लीफ के स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे दोनों साइड एपिडर्मिस होती है. ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. अब इन ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बीच में मेसोफिल टिश्यू अवेलेबल होते हैं, जो कि दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पेलिसेड पेरेंकाइमा, स्पॉन्जी पेरेंकाइमा. अब आप सोच रहे हो कि सर मेसोफिल टिश्यू और पेरेंकाइमा से अलग अलग क्यों बोल रहे हो? मेसोफिल टिश्यू का नाम है, ठीक है, और पेरेंकाइमा सेल्स के नाम है. तो ये जो टिश्यू है वो पेरेंकाइमा सेल से बने हुए हैं. तो ऊपर वाले को हम कहते हैं पेलिसेड पेरेंकाइमा, नीचे वाले को हम कहते हैं स्पॉन्जी पेरेंकाइमा. तो जो पेलिसेड पेरेंकाइमा है वो थोड़े हार्ड होते हैं और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा थोड़े सॉफ्ट होते हैं. लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा नाम के ऑर्गन होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. So guys, now I am going to explain you the structure of stomata. So you can see this diagram is of stomata. At the center there is a stomatal pore is present, through which water comes out as well as oxygen bubble comes out during the opening of stomata. But during the closing of stomata, it carry carbon dioxide inside it. That I tell you in the opening and closing of stomata in the mechanism. Stomatal pore is covered or protected by the guard cells. What is guard cells? Guard cells are the cells which protect the stomatal pore. In case of a dicotyledonous plant, these guard cells are kidney shaped, as you can see right now. In case of monocotyledonous plant, they are dumbbell shaped. So on the basis of structure of a guard cells, whether they are dumbbell shaped or kidney shaped, they can be visualized, they can be identified whether it is a dicot plant or monocot plant. Yes, and then guard cells are further protected by the subsidiary cell, also known as a accessory cell. Mechanism of opening and closing of stomata is mainly based on the concentration of potassium ions and hydrogen ion. Most probably potassium ion. If a potassium ion is more in the guard cell, yes, and less in the subsidiary cell, stomata will get open. And if a potassium ion is more in the subsidiary cell and less in the guard cell, then it will undergo closing of stomata. Are you getting guys? See, stomata एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये उसका स्ट्रक्चर है पूरा. स्टोमेटा के सेंटर पे होता है स्टोमेटल पोर, जहां से वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर बाहर आता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, मतलब दिन में. और नाइट पीरियड में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है. स्टोमेटा गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं. गार्ड सेल, अगर ये गार्ड सेल किडनी जैसे दिखते हैं तो ये डाइकोट प्लांट है,
और अगर ये डंबल जैसे दिखते हैं तो ये मोनोकोट प्लांट है। तो आप लीफ को अगर माइक्रोस्कोप में देखो और उसके अगर गार्ड सेल्स को आप स्टडी करो तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये इसकी जो सीड होगी वो दो भाग में डिवाइड होगी या नहीं, मतलब ये डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट प्लांट है। और गार्ड सेल्स के बाद सेल्स आते हैं एक्सेसरी सेल या तो हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। डिपेंड करता है पोटेशियम आयन के ऊपर। अगर पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा ओपन होंगे, लेकिन अगर गार्ड सेल्स में पोटेशियम कम है और सब्सिडरी सेल्स में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। So guys, mechanism of opening and closing of stomata was given. This mechanism was given by the Levitt in 1974. So हम जो mechanism of opening and closing of stomata देख रहे हैं वो Levitt theory देख रहे हैं, वो आप याद रखिए। Levitt scientist says that opening of stomata generally takes place at a daytime and closing of stomata generally takes place at night time. Closing of stomata takes place at night time. ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, at a daytime starch get converted into malic acid and this malic acid get converted into two different ions. One is a malate ions and second one is hydrogen ions. क्या होता है, डे पीरियड टाइम में स्टार्च का कन्वर्जन मैलिक एसिड में हो जाता है। अब आप सोचो कि स्टार्च कहां से आया। जनरली प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सुक्रोज होता है, लेकिन स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है, स्टार्च में। सो नाइट में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। क्यों, अगर ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर करेंगे तो ग्लूकोज की स्मेल से ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल अट्रैक्ट होंगे और वो लीफ को खा जाएंगे। इसके लिए प्लांट स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं लीफ ग्लूकोज को। तो स्टार्च का डे में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड का मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल्स से बाहर चले जाते हैं, दे गोस आउट ऑफ गार्ड सेल। अब बच गया मैलेट आयंस, इनका कन्वर्जन पोटेशियम आयन हो जाता है और ये पोटेशियम आयन कहाँ जाते हैं, दिस पोटेशियम आयन गोज इनसाइड द गार्ड सेल। सो इन गार्ड सेल पोटेशियम आयन इज मोर, यस, इन गार्ड सेल पोटेशियम आयन इज मोर। यू कैन सी, देखो गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन बढ़ गए, ठीक है, पोटेशियम आयन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है गार्ड सेल्स के अंदर। As a potassium ion increases in the guard cell, what will happen, guys? Think about osmosis. If a potassium ion increases in the guard cell, what will happen? Due to the increase in potassium ion in the guard cells, yes, यहाँ पे कौन सा concentration generate होगा? यहाँ पे concentration जो generate होगा, that will be the hypotonic. Yes, it will be the hypotonic. यहाँ पे जो concentration generate होगा hypotonic, मतलब यहाँ पे पोटेशियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन वाटर कम है, तो क्या होगा, वाटर है ना सब्सिडरी सेल में से, वाटर सब्सिडरी सेल में से कहाँ जाएगा, गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि गार्ड सेल्स फुल्ली क्या हो जाएंगे, फुल्ली गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और टर्जिड होने के कारण वो क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे, मतलब ओपन होंगे। और जब ये ओपन होंगे तब अंदर से क्या बाहर आएगा, अंदर से बाहर आएगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड प्लस बाहर क्या आएगा, ऑक्सीजन बबल। ठीक है, तो ये डे टाइम पे ऐसा हो जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एट द डे टाइम स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मैलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन गिवन आउट ऑफ guard cell, but मैलेट आयन converted into potassium ion. This potassium ion increases in the guard cell. As more potassium in the guard cell and less water in the guard cell, water from the subsidiary cell enter inside the guard cell as a osmosis. Movement of water from higher concentration to that of lower concentration. तो subsidiary में water ज़्यादा है, potassium कम है,
और गार्ड सेल में पोटेशियम ज्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर सब्सिडरी में से गार्ड में जाएगा और गार्ड सेल स्वेलो हो जाएंगे और अल्टीमेटली ओपन होंगे। जब ओपन होंगे तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों बाहर आएंगे। अब नाइट टाइम में क्या होता है देखिए, एट नाइट टाइम photosynthesis process stop and CO2 concentration increases and ultimately it produces ABA, stand for abscisic acid. Yes, ये देखिए नाइट पीरियड में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होती है। तो फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस स्टॉप हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एबी हार्मोन मतलब एब्सिसिक एसिड हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर एबी हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या सिचुएशन जनरेट होती है, कम ऑन, अगर एबी हार्मोन अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो पोटेशियम की क्वांटिटी कहां बढ़ जाती है, पोटेशियम की क्वांटिटी एक्सेसरी सेल्स में बढ़ जाती है। कहां से, गार्ड सेल्स में से एक्सेसरी सेल्स में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर पोटेशियम अगर एक्सेसरी सेल्स में बढ़ गए तो क्या होगा, अब एंडोस्मोसिस होगा क्या, नहीं, अब क्या होगा, अब एक्सोस्मोसिस होगा। और एक्सोस्मोसिस होने के कारण देखिए पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेसरी में ज्यादा है और वाटर कम है, और गार्ड सेल्स में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी कम है। और कम होने के कारण क्या होगा, वाटर अब गार्ड सेल्स में से कहां ट्रांसफर होगा, एक्सेसरी सेल में, और जब एक्सेसरी सेल फेल होंगे तो वो क्या करेंगे, स्टोमेटा को बंद कर लेंगे, और जब स्टोमेटा बंद होगा तब बाहर से अंदर की तरफ क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज में आएगा एज अ raw material. This is called opening, mechanism of opening and closing of stomata explained by the Levitt. Hello dear all students. So now I am going to explain you transpiration and photosynthesis, a compromise. This topic is from the same chapter, that is a transport in plants. So basically इस टॉपिक में ये एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें सीखना क्या है, समझना क्या है। इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए ट्रांसपायरेशन कितना इंपॉर्टेंट है और प्लांट में ट्रांसपायरेशन के बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आइए चलिए समझ लेते हैं इस चीज को। सो बेसिकली इफ यू स्टार्ट विथ अ टॉपिक कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर act as a raw material in presence of sunlight. They synthesize glucose as a product and O2 as byproduct, ठीक है। तो ये क्या ना, ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों के दोनों रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, और सनलाइट जनरली क्लोरोफिल पिगमेंट थ्रू देयर लीफ ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। अब अगर हम इस प्रोसेस को टेली करें, कंपेयर करें, कॉम्प्रोमाइज करें ट्रांसपायरेशन से, तो ट्रांसपायरेशन में देखिए क्या होता है। नाउ दिस वन इज लीफ, यस, इन द लीफ एट द लोअर साइड देयर इज अ स्टोमेटा इज प्रेजेंट, in the leaf at the lower side there is a stomata is present. During the opening of stomata what happened, stomata release water plus oxygen. Stomata release water in the form of water vapor and it also release oxygen. Now that oxygen we human being and animal used to consume or inhale by the process called inhalation or inspiration, and whatever we throw the carbon dioxide, so during the closing of stomata basically carbon dioxide is taken inside the stomata. So stomata जब ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर को बाहर फेंकते हैं वेपर के फॉर्म में, और स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। तो स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास मिल जाता है, वाटर उनको बेसिकली रूट में से मिल जाता है,
फिर वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाहर फेंकते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रांसपिरेशन के ऊपर। तो आपने देखा भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। वाटर प्लांट को रूट में से मिल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तभी मिलेगा जब स्टोमेटा क्लोज करेंगे। स्टोमेटा क्लोज तभी करेंगे जब ओपनिंग करेंगे। तो स्टोमेटा अगर ओपनिंग होता है तो ऑक्सीजन हमें मिलता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं एज अवर वेस्ट प्रोडक्ट विच बिकम अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट, तो प्लांट उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये तो चलो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए ट्रांसपिरेशन का कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब ट्रांसपिरेशन से क्या क्या फायदे होते हैं? यस, with the help of transpiration several things happens. See, with the help of transpiration several things happens. I'll tell you one by one. With the help of transpiration plant basically feels cooling effect. मतलब आप रूट से लेके अगर टॉप मोस्ट लीफ तक देखो तो प्लांट में कूलिंग इफेक्ट आता है। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें 10 to 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। With the help of a transpiration, there is a continuation evaporation of water into the atmosphere. Yes, so ultimately from root to the stomata, there is a continuation filling or transportation of water along with a mineral with the help of xylem as a conducting element. तो रूट से लेके लीफ के स्टोमेटा तक जाइलम वाटर और मिनरल को कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, ट्रांसलोकेट करते रहता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली है। प्लांट में कूलिंग इफेक्ट मिलते हैं, प्लांट में कंटिन्यूएशन वाटर सप्लाई होता है, प्लांट का खुद का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और ऐसे ही प्लांट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू फूड मटेरियल भी ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस, सो इन द फोटोसिंथेसिस देयर आर टू मैकेनिज्म्स, C3 pathway and C4 pathway. There are certain plants which are fixing the first product of a 4 carbon like oxaloacetic acid. They are called C4 plants, and they are showing C4 pathway. But there are certain plants which are fixing their first product as a 3 carbon like a phosphoglyceric acid, PGA. They are called C3 plant and their pathway is called C3 pathway. So C3 pathway or C4 pathway, they are also depending on the mechanism of transpiration, because with the help of transpiration CO2 is coming inside and it helping the photosynthesis to carry out the process. So this is transpiration and photosynthesis compromise. I would say that both the processes are interdependent on each other. If you don't do the transpiration, then photosynthesis will not be able to perform. आप photosynthesis नहीं कर सकते हो जब तक आप transpiration नहीं करते हो, क्योंकि transpiration नहीं करोगे, अगर स्टोमेटा क्लोजिंग के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जनरेट नहीं होगा. सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So guys, now I am going to explain you uptake and transport of mineral nutrients. Basically we know that plant get their sufficient amount of carbon dioxide, sufficient amount of oxygen through the transpiration. But what about the mineral? What about the mineral? ठीक है, देखो हम ह्यूमन बीइंग, हम खाने में मिनरल विटामिन सब चीजें मिल जाती है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं मिलते, तो हमें बाहर टैबलेट के थ्रू उनको लेना पड़ता है. क्लियर है, जो हमें इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड होते हैं. सो सेम लॉजिकली बात है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये तो इजीली अवेलेबल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, लेकिन व्हाट अबाउट द मिनरल? प्लांट को मिनरल कहां से मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि प्लांट को मिनरल रूट से मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ अ जाइलम टिश्यू. तो अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि हाउ बेसिकली मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट, हाउ बेसिकली मिनरल्स आर अपटेक एंड दे आर transport of a mineral to the different parts of a plant body. So this topic will be divided into two parts. One will be uptake of a mineral and second will be translocation of minerals. So we are first going to discuss about uptake of mineral ions. Yes, what is that uptake of a mineral ions? So I'll tell you guys. Just imagine we have one tree in front of us. Yes. Now in this tree there are roots are present, and these roots are present inside this soil. Just imagine this one is the soil particle, and inside soil particle
this root is present. Okay, so what is the uptake of mineral ions? Uptake of mineral ions means how mineral ions are moved from root hairs to the aerial parts of a plant body. अपटेक ऑफ मिनरल आयन का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर जो मिनरल अवेलेबल है वो मिनरल रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट के ऊपर के पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपटेक ऑफ मिनरल आयंस. अब मैं आपको बता दूं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट easily uptake because maximum of them are charged ions. ये देखिए जितने भी मिनरल हैं वो इजी नहीं, ऑल मिनरल्स आर नॉट इजीली अपटेक. जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल में वो सब इजीली अपटेक हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज मैक्सिमम ऑफ देम मतलब मैक्सिमम मिनरल्स आर चार्ज आयंस. अगर कुछ मिनरल चार्ज आयंस है, कुछ नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने मिनरल, मान लो एक सॉइल में 50 नंबर ऑफ मिनरल्स अवेलेबल है, मतलब अलग अलग प्रकार के 50 मिनरल अवेलेबल है और प्लांट को सभी के सभी चाहिए, तो उनमें से 10 मे बी 15 और मे बी 20 इजीली अब्सॉर्ब हो जाएंगे ऊपर की तरफ बाय द डिफ्यूजन आल्सो. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है, जो 30 या तो 35 मिनरल है वो चार्ज आयन है तो वो इजीली अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे. तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उनको एक्टिवली अब्सॉर्ब करना पड़ेगा या तो हमें उनको पैसिवली अब्सॉर्ब करना पड़ेगा. सो वी विल शो द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन मेथड. वी विल शो द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन मेथड. This absorption will be one will be the passive absorption and second one will be the active absorption. What is passive absorption and what is active absorption, guys? Passive absorption like a diffusion, yes, like a facilitated diffusion, like a imbibition, and active absorption means osmosis. In passive absorption there is no need of a energy and therefore this is a passive where there is no expenditure of energy. Active where there is a use of energy, where there is a loss of energy, where there is a expenditure of energy. That's why we are calling as a active. Absorption के दो मेथड आ जाते हैं, एक मेथड आ जाता है पैसिव और एक मेथड आ जाता है एक्टिव. पैसिव अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, पैसिव अब्सॉर्प्शन में लिविंग सेल का यूज ही नहीं होता, मिनरल खुद ब खुद ऊपर जाते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बाय द इम्बिबिशन प्रोसेस. तो तीनों प्रोसेस में एनर्जी का यूज ही नहीं होता, तो ये खुद ब खुद प्रोसेस होती है जिसके लिए उनको हम कहते हैं पैसिव अब्सॉर्प्शन. लेकिन एक्टिव अब्सॉर्प्शन में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मिनरल को आगे की तरफ या तो ऊपर की तरफ मिनरल को धकेलने के लिए हमें एनर्जी का यूज करना पड़ता है. और अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उनके अगेंस्ट हमें मिनरल को आगे भेजने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी का यूज करना पड़ेगा. और अगर एटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव अब्सॉर्प्शन. क्लियर गाइस? तो पैसिव अब्सॉर्प्शन से हम अगर ऊपर मिनरल को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो या तो डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या तो इम्बिबिशन से होगा. लेकिन अगर एक्टिव अब्सॉर्प्शन से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस हो जाएगी, यस कौन सी होगी, वो प्रोसेस हो जाएगी दैट विल बी एक्टिव. क्या कहते हैं एक्टिव को? osmosis, where there is a movement of solvent from guys higher concentration to the lower concentration, higher water potential to the lower water potential. ठीक है, उसे हम बेसिकली कहते हैं ऑस्मोसिस या तो हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में न्यूट्रिएंट का बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में न्यूट्रिएंट तो पास मतलब मिनरल तो ऊपर चले जाएंगे लेकिन एनर्जी का काफी सारा यूज हो जाएगा. तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा अपटेक. अब ये देखिए मिनरल आयन रूट हेड्स के अंदर चले जाते हैं, रूट हेड्स के थ्रू रूट में जाएंगे और रूट के थ्रू वो बेसिकली स्टेम में चले जाएंगे और स्टेम के थ्रू कहाँ जाएंगे, वो ब्रांच में से फिर लीफ में जाएंगे. ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट है हमारी क्या, इस वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं अपटेक. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. So guys, now after the uptake, we are going to discuss about transport of mineral nutrient. Means, what does it mean? Simply translocation of mineral ions. Transfer, location, position. Transfer of location, change of position.
Now in this we by the process of uptake we understood how basically mineral enter into the root. Yes, enter into the root hair. So mineral enter into the root hairs either by active absorption or either by passive absorption or either by say both. ठीक है, हमने अब तक अपटेक में ये समझ लिया है कि मिनरल आयंस या तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होकर रूट के अंदर आते हैं या तो पैसिवली एब्जॉर्ब होकर रूट के अंदर आते हैं या तो दोनों टेक्निक से आते हैं. अब टेक्निक कोई भी हो. यस, नाउ मिनरल आयंस आर रीच इनटू द रूट. मिनरल आयंस आर रीच इनटू द रूट. सो रूट इज कंसीडर्ड एज स्टोरेज ऑर्गन. रूट क्या है? रूट है स्टोरेज ऑर्गन. तो अब हमें स्टोरेज ऑर्गन से सिंक एंड तक मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है. मिनरल को हमें ट्रांसपोर्ट करना है. कहां से कहां तक? हमें स्टोरेज ऑर्गन से सिंक एंड तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है. तो सिंक एंड मतलब क्या? ये देखो, रूट को हमने स्टोरेज ऑर्गन क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल कहां अवेलेबल होते हैं? रूट में. और बाकी प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के अंदर मिनरल कम है रूट के कंपेयर में. तो रूट उन सभी को मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा. तो उन सभी ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे सिंक एंड. तो उसमें कौन कौन आएंगे? उसमें आएंगे स्टेम, ब्रांचेस, यस, पेटियोल, लीफ, फ्रूट, फ्लावर और इवन सीड. तो ये सब कौन है? ये सभी ऑर्गन है सिंक एंड, कंजम्पशन एंड या तो सिंक एंड. इन सभी को मिनरल की जरूरत है. नाउ मिनरल इज प्रेजेंट इन द रूट एंड फ्रॉम द रूट इट विल बी ट्रांसपोर्ट टू द ऑल द पार्ट. मिनरल इज प्रेजेंट इन द रूट, इट मींस इट इज प्रेजेंट इन द storage organ and it will transport to the sink end, means to this all this organ. How? With the help of a transpirational or transpiration stream. अब transpiration stream का मतलब क्या होता है? Water and mineral both enter into the root hair. Through the root hair they enter into the root. Through the root they enter into the stem. From the stem it enters into the branch. From the branch it enters into the petiole. From the petiole it enters into the leaf. And from the leaf it enters into the what? It enters into the stomata. Clear? So complete plant body is supplied nutrient. Actually instead of nutrient I must say first mineral. Complete plant body is supplied mineral with the help of a ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. अब हम ये कहते हैं कि पूरे प्लांट को मिनरल का जो सप्लाई है वो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के थ्रू है और हम जाइलम को भूल जाएंगे, उसको क्रेडिट ही नहीं देंगे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. रूट से वाटर और मिनरल ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के थ्रू ऊपर जाते हैं, लेकिन उनको कंडक्ट करने का काम तो मिनरल आयन का उनको कंडक्ट करने का काम तो जाइलम टिश्यू करते हैं ना. Yes, so transpiration stream is governed by or transpiration stream is done with the help of a xylem tissue. If you forget xylem tissue, you can't give a credit to only transpiration stream. Transpiration stream क्या है? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक जाना है. फर्स्ट फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक जाना है. ठीक है, तो आप फर्स्ट फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक जाने की एक सिस्टम को क्या उसे वैल्यू दोगे या तो आप लिफ्ट से जाओगे उसे वैल्यू दोगे? लिफ्ट को वैल्यू दोगे ना, क्योंकि आप लिफ्ट के थ्रू जा रहे हो, उस बॉक्स के थ्रू नहीं जा रहे हो जो लिफ्ट के अंदर बना हुआ है. ठीक है, आप लिफ्ट के थ्रू जा रहे हो. सो यू विल गिव अ क्रेडिट टू लिफ्ट. अगर लिफ्ट का क्रेडिट जानना हो तो 12th फ्लोर तक सीढ़ियों से जाओ. आपकी जब पसीने छूटेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं, लिफ्ट वाज मोर बेटर, यस, कंपेयर टू द स्टेपिंग. ठीक है, सेम वे यहाँ पे ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम तो है, लेकिन वो जनरल कंडक्शन किसके द्वारा हो रहा है? जाइलम के द्वारा. So hello dear students, so now I am going to explain you phloem transport from source to sink. Yes, phloem transport. अब phloem transport का मतलब क्या है? What is the function of a phloem? The main function of a phloem is to transport food material with the help of a water to all the parts of a plant body. तो basically phloem transport का मतलब क्या हुआ? Transport of a food material from source to the sink. अब ये source to sink का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अब आप कंसिडर कर लीजिए ये वाली है हमारी ट्री. ठीक है, और उस ट्री में ये है ब्रांचेस और ब्रांचेस के ऊपर जनरेट हो रहे हैं हमारे लीफ. ठीक है,
दिस इज अ ट्री एंड ऑन द ट्री देयर इज अ लीफ आर प्रेजेंट, ठीक है, इस ट्री के ऊपर लीफ अवेलेबल और ये है रूट सिस्टम, isn't it? Now I'll tell you guys fluent transport. Basically what is a fluent transport means food transport. So in the plant body food is synthesized inside the leaf by the process of photosynthesis. So by the process of photosynthesis plant prepared glucose molecule. तो आप कंसिडर कर लो या तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है ग्लूकोज, या तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है सुक्रोज, या तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है स्टार्च. यस, ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड एंड स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड. प्लांट बेसिकली इनमें से कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं. अगर वो डायरेक्टली रेडीमेड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ग्लूकोज, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट सुक्रोज और स्टार्च ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे. फूड ट्रांसपोर्ट. Remember, in the complete plant body, all the organs are divided into two categories according to this topic. All the organs are divided into two categories according to this topic, and these organs are: first one is a source. What is source? Source is called storage organ. It is also called as a supply point. Storage organ also known as a सप्लाई पॉइंट. नाउ डू टेल मी, थिंक अबाउट व्हाट इज अ स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, ये देखिए हमारे घर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? स्टोरेज टैंक में आता है, टैंक में से आता है. मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका की जो बड़ी टंकी होती है वहां पे पानी जमा होता है पहले. मतलब वाटर फिल्ट्रेशन होने के बाद पानी वहां जमा होता है और वहां से पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर है? तो अगर उस टैंक में से पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो टैंक कौन है? वो है स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट. तो आप समझ लीजिए फूड मतलब क्या? ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च. और ये कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं? लीफ में. तो आप लीफ को क्या कहोगे? आप लीफ को कहोगे स्टोरेज ऑर्गन, मतलब सप्लाई पॉइंट. सबसे ज्यादा फूड कहां अवेलेबल है? लीफ में अवेलेबल है, क्योंकि लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती है तो लीफ के पास फूड तो होगा ही. तो लीफ स्टोरेज ऑर्गन है और इसे ही हम कहते हैं सप्लाई पॉइंट. अब लीफ में से फूड मटेरियल हम कहां ट्रांसफर करेंगे? तो लीफ में से हम फूड मटेरियल ट्रांसफर करेंगे स्टेम में, ब्रांचेस में, यस, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में, ठीक है, रूट में. इन सभी पार्ट्स में हम फूड मटेरियल ट्रांसफर करेंगे. तो इन सभी ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? इन सभी ऑर्गन को हम कहेंगे यस सिंक पॉइंट, या तो उसे हम कहेंगे सिंक एंड, या तो उसका तीसरा नाम है कंजम्पशन पॉइंट. ठीक है, क्लियर हो गया? सी, स्टोरेज ऑर्गन और सप्लाई पॉइंट इज अ लीफ बिकॉज लीफ prepared a food by photosynthesis and this food is either glucose, sucrose or starch, and it is transport from leaf to the all over the plant's part with the help of a phloem as a conducting tissue. Yes, and it is supplying to the stem, branches, flower, fruit, seed and root. This organ acts as a sink point, also known as a sink and or also known as a consumption point. मतलब जिसके पास फूड अवेलेबल है वो है सप्लाई पॉइंट या तो स्टोरेज ऑर्गन जो कि है लीफ, और जिनको लीफ में से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनको हम कहते हैं कंजम्पशन पॉइंट, सिंक एंड या तो सिंक पॉइंट. उसमें आते हैं स्टेम, ब्रांचेस, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सभी के सभी. ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए फ्लोएम की डायरेक्शन क्या है. फ्लोएम इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल. Phloem is always bidirectional. Now you must be in the confusion. Why bidirectional? Food prepared in the leaf and transport to all over the body parts. So food material leaf में से बाकी सभी parts में transport होगा. अगर बाकी सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा तो फ्लोएम तो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि लीफ के अंदर फूड मटेरियल कम होता है. कभी ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, सनलाइट की क्वालिटी कम हो जाती है. तो क्वालिटी इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है और उसके कारण लीफ के पास फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है. सो लीफ को रिटर्न फूड भेजा जाता है फ्रॉम रूट, फ्रॉम स्टेम,
from branches, from fruit, from flower and from सीड। तो उस वक्त ये सभी ऑर्गन क्या बन जाते हैं, इन सभी ऑर्गन को हम उस वक्त क्या करते हैं स्टोरेज ऑर्गन या सप्लाई पॉइंट, और लीफ क्या बन जाती है, कंजम्पशन पॉइंट। तो ये सिस्टम भी है। इसके लिए फ्लोएम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही नहीं आता है, फ्लोएम ऊपर की डायरेक्शन में भी जाता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं बाय डायरेक्शनल। तो ये है कंसेप्ट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। Okay guys, now we are going to discuss about the last topic of lesson, that is the pressure flow hypothesis, or you can say mass flow hypothesis। अब इसका कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूँ। ये देखिए, the accepted mechanism for translocation of food from source to sink is called mass flow hypothesis, or also called प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये देखिए, अब सिंपली लॉजिकली हमें ये बता रहा है कि एक ट्री में लीफ क्या करते हैं, लीफ करते हैं फोटोसिंथेसिस। इन द ट्री बेसिकली लीफ अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, so later on it get converted into disaccharides such as the sucrose। Yes, at the beginning glucose is produced by the leaf by photosynthesis, so glucose is a monosaccharide, so monosaccharides basically converted into disaccharides such as the sucrose। Now this sucrose enter into the phloem, yes, सुक्रोज उसके बाद किसके अंदर एंट्री कर जाता है, फ्लोएम, क्योंकि सुक्रोज क्या है, सुक्रोज है फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से एलिमेंट होते हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट, वो होते हैं फ्लोएम। तो बेसिकली ग्लूकोज का कन्वर्जन सुक्रोज में, और सुक्रोज फिर एंटर कर जाता है फ्लोएम में। अब समझने वाली ये बात है कि मास फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। ये देखिए, द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस। मतलब फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सोर्स टू सिंक, इट इज कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब ये सोर्स क्या है फूड का, अब ये देखिए इस डायग्राम में आपको सोर्स कहां दिख रहा है फूड मटेरियल का, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि फूड मटेरियल का सोर्स ये लग रहा है, क्यों, बिकॉज लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और लीफ क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो फूड मटेरियल का सोर्स कौन सा है, लीफ, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीफ को हम कहेंगे सोर्स ऑर्गन, हम इसे कहेंगे सप्लाई पॉइंट, और इसी को हम क्या कहेंगे, सप्लाई एंड, इसे हम स्टोरेज ऑर्गन भी कहेंगे, स्टोरेज ऑर्गन। अब ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कहां करेंगे, वो फूड मटेरियल उन सभी ऑर्गन में ट्रांसफर करेंगे जिनको फूड की जरूरत है, जैसे स्टेम, ब्रांचेस, यस, फिर आप कहो फ्लावर, फ्रूट, सीड और रूट। इन सभी ऑर्गन को फूड की जरूरत है, ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम कहेंगे सिंक, ठीक है। सिंक को हम और क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंजम्पशन पॉइंट, ठीक है, या तो उसे और एक नाम होता है ग्रोइंग रीजन, क्योंकि ये सब ग्रो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब हुआ फूड मटेरियल सोर्स से लेके सिंक तक ट्रांसपोर्ट होने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या तो मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, हमें फ्लोएम का डिस्कशन करना है। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ
by photosynthesis. Glucose is a monosaccharide, later on converted into disaccharide. Now this disaccharide molecule enter into the phloem, and through the phloem it is transported to the complete tree, complete plant body. Remember, in the phloem there is a hypotonic solution is generated. Hypotonic condition is generated. Hypotonic का मतलब क्या हुआ? देखो, phloem के अंदर फिलहाल सुक्रोज कम है और वाटर ज्यादा है. सुक्रोज कम है और वाटर ज्यादा है, तो सिचुएशन क्या हो गई? हाइपोटोनिक. और हाइपोटोनिक सिचुएशन होने के बाद सुक्रोज पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा? फ्लोएम के अंदर आ जाएगा. तो सुक्रोज विल एंटर इनटू द phloem. Now phloem will transport food material to the stem, to the branch, to the flower, to the fruit, to the seed as well as to the root. इन सभी ऑर्गन को phloem फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा. मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का मतलब क्या हुआ? सुक्रोज ट्रांसफर करेगा. और जैसे सुक्रोज फ्लोएम इन सभी को ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए. ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तभी तो सुक्रोज अंदर जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से जो फूड मटेरियल ट्रांसलोकेट होते हैं सोर्स टू द सिंक, इट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, आल्सो कॉल्ड एज अ मास फ्लो हाइपोथेसिस. इसे आप कितना भी पढ़ो इसका मतलब यही निकलता है. ठीक है, और इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा हुआ था, जिस टॉपिक को हम कहते हैं यस ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड थ्रू द फ्लोएम, उस टॉपिक में भी हम यही चीजें एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन इसमें क्या है? एक हाइपोथेसिस है, हमें अंदाजा दिया हुआ है कि फूड मटेरियल ऐसे इस थ्रू लोकेट होता है. Hello friends, so as you know that after completion of chapter I used to revise the chapter in just only short time. So I'll just revise this chapter in just only 10 minutes. Yes, तो इस 10 मिनट में मैं आपको पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा है वो ऊपर से सब समझा दूंगा, ताकि इस रिवीजन के बाद आप जब MCQ पे जाओ तो MCQ आपको एकदम इजी पड़े. ठीक है, तो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 11th नंबर चैप्टर फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड CBSE. दिस इज फ्रॉम द यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी. सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये जो चैप्टर है मेरे पास NCERT सामने है. इसमें से मैं ऊपर के सिर्फ टॉपिक देख रहा हूँ कि क्या क्या हमने बेसिकली दिखा हुआ था. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज बेसिकली द चैप्टर विच हैव वेटेज ऑफ अराउंड 2 to 3 MCQ. 2 MCQ इज गारंटेड. 2 MCQ तो आते ही हैं इस चैप्टर में से. And from this chapter there are very important topics are there. Like we started with the first means of a transport, in which we discuss about diffusion, facilitated diffusion and active transport. Diffusion was nothing but the process by which most probably gases and liquid was transfer, and there was no need of a living system and there was no expenditure of energy. Therefore it was simple kind of a passive absorption. एंड डिफ्यूजन बेसिकली स्लो प्रोसेस होती है और इसमें कोई लिविंग सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होती, इसके लिए हम पैसिव प्रोसेस करते हैं, कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है. फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन का टाइप ही है जिसमें हमने स्पेशलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ किए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं हम. और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने एक्वापोरेंस, मतलब वाटर सिस्टम में 8 मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्वापोरेंस, और इसमें भी कोई लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, ना ही देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. देयरफॉर ये भी एक प्रकार का पैसिव होता है ये, लेकिन इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल को एक मेम्ब्रेन में से, मतलब आउटर साइड से इनर साइड के लिए लेके जाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. Active transport is a type of transport in which there is a specialized active protein molecules are required for, and they are called membrane protein, which are responsible for transmission of molecule. Yes, and then in osmosis, sorry मैं थोड़ी इसकी प्रॉब्लम चल रही थी. In a active process there is a, you can say, expenditure of energy, loss of energy. Therefore we called it as a active. Rather than the passive, there is no loss of energy. Active, there is a loss of energy. ठीक है, ये हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देखा था. उसके बाद हमने कंसेप्ट देखी थी, कंसेप्ट देखी थी कंपैरिजन इन तीनों का. उसके बाद हमने देखा प्लांट वाटर रिलेशन. सो एक्चुअली वाटर इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी विच आर टेकिंग प्लेस इन द प्लांट बॉडी विच आर कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड वाटर. Water generally 96 to 97% solute are dissolved in the water. So therefore it is very important solvent. ठीक है, फिर हमने कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल देखा. एवरी केमिकल हैज़ अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, हैज़ अ पर्टिकुलर पावर,
वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है और इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी possessed by water molecule is called potential energy, which is indicated by you can say psi and W. W stand for water, and this psi symbol is for the you can say potential. So potential of water. अगर वाटर को नीचे जमीन पे फेंको तो ये स्पीड में जाएगा जस्ट बिकॉज उसके अंदर वाटर पोटेंशियल है. ठीक है. अगर सेम वाटर को वाटर में अगर हम सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसे हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल. और मोस्ट प्रोबेबली वाटर के अंदर प्रेशर पोटेंशियल होता है, मतलब स्पीड होती है उसकी. यूनिट ऑफ मेजरिंग अ वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड पास्कल, विच इज इंडिकेटेड बाय द PA. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इट बिकम्स इक्वल एट द बोथ द साइड. और इसके हमने टाइप भी देखे थे, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस. अगर आप कोई सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब concentration of solute is less and water is more. So water from outside will enter into the inside from higher to lower. So ultimately cell will get swallow. It is called turgid. It's called turgid cell, or you can say swallow cell. Or same way in opposite. If you take a cell and put into the one dish where there is hypertonic solution is there, it means solute is more and water is less. That time water will move from inside to outside. Cell will undergo shrink. It is called flaccid. It is also called as a plasmolysed cell, and shrunken cell is called as a plasmolysed cell. हमने ये भी देखा था प्लाज्मोलाइसिस. उसके बाद हमने देखा इम्बिबिशन. क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वुड इज कॉल्ड इम्बिबिशन. अब आप मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हो, ठीक है. बारिश के सीजन में क्या होता है, ये जो दरवाजों के जो लॉक होते हैं, पानी बारिश के सीजन में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर ये वुड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वुड के अंदर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं जैसे लिग्निन और पैक्टिन. ये वुड पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्टीमेटली ये जो वुड है वो स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होने के कारण ये जो कुंडी है वो प्रॉपरली लग नहीं पाती, लॉक नहीं लग पाता है. तो ये इम्बिबिशन के कारण होता है, जनरली बारिश के सीजन में पाया जाता है. फिर हमने देखा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. हमने ये देखा कि प्लांट जनरली 50 माइक्रोमीटर तक 2.5 सेकंड मतलब 2.5 सेकंड लगाते हैं, इतना 50 माइक्रोमीटर लगाने के लिए. तो अगर इतना ज़्यादा मतलब प्लांट की पूरी हाइट तक अगर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करना है, या तो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या सिर्फ डिफ्यूजन सफिशिएंट रहेगा? नहीं, हमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ ऑस्मोसिस, और उसके बाद हमें जाइलम फ्लोएम और ट्रांसपरेशन पुल, इन सभी टेक्निक के थ्रू ही हम सब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा. 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड, आपको MCQ आएगा 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड, याद रखिए. ठीक है. उसके बाद हमने देखा हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर. Plant generally absorb the water by the two different way. One is apoplast, second one is symplast. In apoplast pathway, the movement of water takes place through intracellular spaces from the epidermis, cortex, endodermis, and then pericycle and xylem and the topmost part of plant. Same way in symplast pathway also, the movement of water takes place from root to the epidermis, to the cortex, and then endodermis, then pericycle, and then xylem and direct top. But here water moves from one cell to another cell to third cell with the help of cytoplasmic bridge, or you can say yes, plasmodesmata. तो हमने ये देखा हुआ था सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे. उसके बाद हमने देखा वाटर अप टू द प्लांट. उसमें हमने देखा रूट प्रेशर, एसेंट ऑफ सेप, गटेशन और ट्रांसपरेशन पुल. छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देखे. उसके बाद हमने देखा ट्रांसपरेशन. क्या होता है ट्रांसपरेशन? इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन. हमने देखा 3 प्रकार के ट्रांसपरेशन होते हैं, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल. 90 to 92% ट्रांसपरेशन स्टोमेटा द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपरेशन. ठीक है. हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखा था. दैट लीफ इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर हाइपोडर्मिस. upper epidermis and lower epidermis you can say, and between upper and lower epidermis there is a mesophyll tissue is available, which is divided into 2 category, pellicid parenchyma and spongy parenchyma. और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी अवेलेबल होते हैं जो कि ट्रांसपरेशन में रोल प्ले करते हैं. फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. एट द सेंटर देयर इज अ स्टोमेटल पोर.
Yes, and through this stomatal pore, oxygen and water vapor comes out and carbon dioxide goes outside, which is protected by the guard cell. Guard cells are kidney shape in dicot plant and dumbbell shape in monocot plant, and they are protected by the subsidiary or accessory cell. Mechanism of opening and closing of stomata was studied by the scientist called Levitt in 1974. He says that opening of stomata takes place at daytime and closing of stomata takes place at night time. During opening of stomata, guard cell potassium concentration increase in the guard cell. So ultimately, due to the endosmosis, guard cell full open and release the water and vapor, water in the form of vapor as well as oxygen outside. And at the time of night period, photosynthesis stop and CO2 quantity increases in the plant. So ultimately it leads to production of ABA, which doesn't allow potassium to go in guard cell. So potassium concentration increase in subsidiary or accessory cell. So ultimately due to the hypertonic concentration, it undergo exosmosis. So this is transpiration basically. फिर हमने देखा हुआ था ट्रांसपायरेशन फोटोसिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज, मतलब दोनों का कंपैरेटिव स्टडी और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हमने वो देखा था. और उसके बाद हमने देखा अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल. ठीक है, मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. मिनरल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो ऑर्गन होते हैं. रूट इज अ साइट फ्रॉम वेयर मिनरल आर एब्जॉर्ब, सो इट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई पॉइंट और स्टोरेज ऑर्गन, एंड इट सप्लाई मिनरल टू द स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, all the parts, even the seed also. So all these parts are called as a consumption point or sink end. So mineral ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसके बाद हमने देखा फूड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. तो फूड मटेरियल भी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ नाम बदल जाते हैं. फूड मटेरियल इज अ ग्लूकोज और सुक्रोज और स्टार्च. It is produced in the leaf by the photosynthesis. So leaf is considered as a storage organ or supply point. ठीक है, और इसे हम सोर्स भी कहते हैं. तो ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है. स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड एज वेल एज रूट, यहाँ सभी ऑर्गन को न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट करती है, फूड ट्रांसपोर्ट करती है वाया फ्लोएम, बाय डायरेक्शनल वे. तो इन सभी ऑर्गन को हम कहेंगे इनको हम कहेंगे कंजम्पशन पॉइंट, या तो कंजम्पशन एंड या तो सिंक एंड. ठीक है, उसके बाद हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस देखा था. हमने इसमें ये देखा था द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल और यूज टू ट्रांसलोकेट फूड मटेरियल फ्रॉम source to the sink is called pressure flow hypothesis, also called mass flow hypothesis. So this is your complete introduction of the chapter. अगर आपको डिटेल में देखना है ये, तो मेरे सभी टॉपिक इस यूट्यूब पे सभी टॉपिक अवेलेबल हैं. ठीक है, क्योंकि बेसिकली रिवीजन में मैं इतना ही आपको शॉर्ट में करवा सकता हूँ. थैंक यू. Hello dear all students, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to explain you 50 most expected and repeated MCQ from the 11th standard CBSE, and the name of chapter is transport in plants. तो मैं आपको ये 50 MCQ एक्सप्लेन करूंगा, उनके चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में हम पूरे 50 MCQ देखेंगे. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. करेक्ट है. लाइक अ पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो वन वाज अ डिफ्यूजन, सेकंड वन वाज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. बोथ वाज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो इन अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन membrane protein was used, and in active transport there was also membrane protein. तो जो पहला सेंटेंस है वो तो एक्यूरेट है, हमें रॉन्ग ढूंढना है. सेकंड देखो, pumps are the protein that use energy to transport substance across the cell membrane from low concentration to high concentration, downhill transport. ये देखिए, pumps are the protein that use energy to transport substance across the cell membrane. ये यहाँ तक सेंटेंस सही है, but from low concentration to high concentration नहीं, high concentration to low concentration. ठीक है, ऐसा होता है. तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है, ये सेंटेंस गलत है. Third, like enzyme, the carrier protein is very specific and what it carry across the membrane. Correct है, carrier specific, carrier protein जो होते हैं वो भी specific होते हैं, एक specific molecule को ही carry करते हैं. तो C वाला भी सही है. Diffusion, whether the facilitated or not takes diffusion,
whether facilitated or not takes place only along with a gradient and do not use energy। तो ये भी सेंटेंस सही है। तो हमारा जो सेंटेंस है बी वाला वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है, मतलब हमारा आंसर बी हो जाता है। देखते हैं, यस करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फाइंड इटसेल्फ डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं होते हैं? तो मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं होते हैं, वो होते हैं लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ई एक्स्ट्रा हो गया है। तो क्या होगा इसका आंसर गाइस? इसका आंसर होगा हाइड्रोफिलिक बी, बिकॉज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एक्चुअली मेम्ब्रेन से इजीली पास वो हो जाते हैं जो सॉल्यूट, जो बेसिकली लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को पास होने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। तो इसका आंसर लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक में से हाइड्रोफिलिक होता है, बी आंसर होता है। देखते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन solubility in lipid, concentration gradient, input of energy and both A and B। एक्चुअली देखो बात यहां पे की गई है, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो यहां पे इनपुट ऑफ एनर्जी आंसर आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन में कहो या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो भी चीज मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होती है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं लगती है, बिकॉज वो पैसिव प्रोसेस है। अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो हम उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं ना। तो इसका आंसर सी बन जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड ये तो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ये भी है, तो इसका आंसर सी बन जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोटीन आर द पोरिन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म्स ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ। तो जनरली जो प्रोटीन बड़े बड़े छेद, बड़े बड़े होल्स, पोरिन्स क्रिएट करते हैं, वो कहां क्रिएट करते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सम बैक्टीरिया, करेक्ट। ये जो आंसर है वो सभी में आ जाता है, ठीक है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे प्रोसेस होती है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसी प्रोसेस पाई जाती है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी हो जाना चाहिए, यस। देखते हैं डी, यस डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा हमें। फिल इन द ब्लैंक। पहले वाले में हमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी, और ये दिया हुआ है सिंपल डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट? नो। हमें क्या है? फैसिलिटेटेड। हमें पहली फिल इन द ब्लैंक हमारी ए है ना। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे? अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। देखिए अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब लो टू हाई, लो टू हाई जाना मूवमेंट, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे यस किस में दिया हुआ है? ए में। तो ये तो ऑप्शन गया। अब ये तीनों में देखो नो है आंसर, ठीक है। फिर बी, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। तो ये देखो ए बी सी ये तीनों आगे कंटिन्यू करेंगे हम। फिर ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, सॉरी बी सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव। तो हाईली सिलेक्टिव होते हैं, डिफ्यूजन में कोई सिलेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका सी का आंसर आएगा नो। तो देखो सी और डी में यहाँ पे नो है, हाँ। तो अब ए बी निकल गए, सी और डी को हम आगे कैरी करेंगे। फिर सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव, डिफेसिलेटेड में यस, और यहाँ पे भी होता है यस, हाईली सिलेक्टिव। तो यहाँ पे यस होना चाहिए। देखो दोनों में डी में यस है। अब ई में हम बढ़ते हैं। रिक्वायर ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, ई में नो, तो यहाँ पे नो होना चाहिए, लेकिन सी और डी दोनों में नो चल रहा है आगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, तो यस आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डी में नो आ गया, लेकिन यहाँ पे सी है, तो ये सही है। आगे हम बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी एनर्जी को जरूर नहीं है, ठीक है, नो नो। और फाइनली इसमें यस हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस। तो ये बात सही है। देखो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं, और यहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत नहीं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। और मेम्ब्रेन, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, एक्टिव प्रोटीन में।
यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं ना, तो इसका आंसर सी में मैच हो रहा है सभी में। यस, सी में मैच हो रहा है सभी में। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपोर्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वॉस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हम ट्रांसलोकेट करते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इम्बिबिशन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इट्स रिलेटेड टू ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये है ट्रांसलोकेशन। सी। क्वेश्चन नंबर 7, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर, concentration gradient, membrane permeability and all of above। तो एक्चुअली डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना, वो इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, सभी के सभी, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर भी होता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के ऊपर भी होता है एंड ऑल ऑफ अबव, मतलब ये इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर और टेम्परेचर कितना है सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और मेम्ब्रेन में से कौन सी चीजों को परमिशन दी जाती है नहीं, तो इसका आंसर डी बन जाता है, ऑल ऑफ अबव। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट, इन डिफ्यूजन molecule moves in random fashion, the net result being a substance moving from region of higher concentration to region of lower concentration, ये तो सही है। Second, diffusion is a slow process and not depend on living system, ये भी सही है। Diffusion is obvious in gaseous and liquid, but diffusion of solid rather than solid is more likely, ये गलत है। मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव एंड नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको चारों के चारों सही लगेंगे, लेकिन जो सी ऑप्शन है ना, देखिए, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड रादर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली, इन सॉलिड नहीं, सॉलिड का सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड के जैसे डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ऑफ आना चाहिए। देखिए आप सेंटेंस देखिए, मेरे पास तो देखिए 11th स्टैंडर्ड की बुक्स है एनसीईआरटी की, और अगर मैं यहाँ पे वो चैप्टर ओपन करूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है। देखो मेरे सामने डिफ्यूजन है अभी, ठीक है, डिफ्यूजन में यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है उन्होंने, रादर देन। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एंड मूवमेंट। एक मिनट, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस, यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर का सेंटेंस है जैसे सी में जैसे दिया हुआ है ऑप्शन, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रादर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली, तो यहाँ पे ऑफ है। अब आप सोचोगे ऑफ और इज में इतना क्या है, लेकिन उससे डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, तो सी आंसर हो जाता है इसका। यस, क्योंकि बाकी सभी सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ, तो वाटर चैनल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वाटर चैनल के अंदर 8 प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। 8 सिमिलर टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, नो। 6 सिमिलर टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, नो। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, नो। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, तो डी इसका आंसर हो जाता है, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। क्वेश्चन नंबर 10, Unipod, sympod and antipod are the types of simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, osmosis। तो ये तीनों चीजें किस में हम डिस्कस करते हैं, ये हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम डिस्कस करते हैं, तो बी आंसर हो जाता है इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 11, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। किस चीज के कारण होता है ये, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का है ना, तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, मतलब ये प्रोसेस हो जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आंसर विल बी ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट टू द एयर थ्रू, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल काफी ज्यादा क्वांटिटी में पानी को जमीन में से एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन वो बाहर पानी को बाहर भी ज्यादा क्वांटिटी में फेंक देते हैं, तो कौन सी टेक्निक से बाहर फेंकते हैं वो, तो वो टेक्निक होती है
ट्रांसपायरेशन। यस, इन सभी का मतलब आपको पता होगा। सी फोटोसिंथेसिस मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस करना, रेस्पिरेशन मतलब एटीपी प्रोड्यूस करना, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर को इवोपरेट करना, ट्रांसलोकेशन मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका आंसर हो जाता है सी, सॉरी इसका आंसर हो जाता है हाँ ट्रांसपायरेशन, सी। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बार बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं, करेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो। इन लिक्विड एंड गैसियस फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल आर रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। करेक्ट है। इन लिक्विड एंड गैसियस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। करेक्ट है ना, रैंडम मोशन, क्योंकि ये जनरली डिफ्यूजन से जाते हैं, तो डिफ्यूजन में रैंडम मोशन होता है। सेकंड, the greater the concentration of water in system, the greater its kinetic energy, water potential। करेक्ट है, जितना उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वाटर सिस्टम का, तो उतना उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसमें फ्लो होने की कैपेसिटी काफी ज्यादा रहेगी। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम occurs from the system in higher energy to one of the lower energy। करेक्ट है, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मतलब ऑस्मोसिस के बारे में बोल रहे हैं, तो ये भी सही है। डी, वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट लोअर वाटर पोटेंशियल टू द वन हायर हैविंग वन हायर वाटर पोटेंशियल। लोअर टू हायर कभी नहीं जाएगा, हायर टू लोअर आएगा ऑस्मोसिस में, तो इसका डी आंसर रॉन्ग आ जाता है, बिकॉज डी जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। यस। क्वेश्चन नंबर 14, if a pressure greater than the atmospheric pressure is applied to the pure water or a solution, its water potential। if a pressure greater than the atmosphere pressure is applied to the pure water or a solution, its water potential, उसका water potential क्या होगा ये पूछा गया है। तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि हम उसको प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं, तो उसका जो वाटर की जो फ्लो है वो स्पीड होगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर कोई पाइप में से पानी जा रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मली डिफ्यूज होके जा रहा है, तो उसकी जो डिफ्यूजन की प्रेशर है वो स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर हम पंप के थ्रू पानी मारते हैं, पंप चालू करते हैं और पानी का पाइप ऐसे पकड़ते हैं, तो उससे प्रेशर आने के कारण उसका जो फ्लो है, वाटर का जो पोटेंशियल है वो और स्पीड में जाता है, तो इसका आंसर ए बन जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल whose content the vacuolar sap contribute to the solute potential of the cell, pressure potential of the cell, turgor potential of the cell, osmotic pressure of the cell। हमें ये पूछा गया है कि प्लांट सेल के अंदर जो बड़ा सा वैक्यूल होता है उसके अंदर जनरली क्या होता है, तो वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट मटेरियल ज्यादा होते हैं। ठीक है, वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट मटेरियल ज्यादा होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। करेक्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग एन एग्जांपल इफ द ट्यूबर इज प्लेस्ड इन अ वाटर द एक्टिविटी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर कलेक्ट वाटर इट ड्यू टू। तो ये किस चीज के कारण है हम पूछा गया है। देखो, आपने कॉलेज में लाइफ में अपने पोटैटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, पोटोमीटर नाम दिया हुआ था उसको। तो पोटैटो को हाफ में कट करके उसे शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो ये जो पोटैटो का एक्सपेरिमेंट है वो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया हुआ है। यस, तो बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट फंक्शन। इनमें से कौन सी प्रोसेस में एनर्जी लगती है प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए। तो डिफ्यूजन में तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि वो पैसिव प्रोसेस है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लगती है। इम्बिबिशन, ये तो डिफ्यूजन का ही टाइप है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन द Thurtle funnel experiment during osmosis the level of solution in the funnel। ठीक है, तो फनल के अंदर सॉल्यूशन की लेवल क्या होती है, हमें ये पूछा गया है। तो बेसिकली फनल के अंदर सॉल्यूशन की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर का मूवमेंट होगा ना एक साइड से दूसरे साइड, सो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज इन द लेवल। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड from the upper part of the funnel to prevent
ऑस्मोसिस इज कॉल्ड। मतलब बाहर से जब हम फनेल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और पोटेंशियल प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? यस, इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? देखो, नॉर्मल वाटर में प्रेशर कितना होता है? 0, लेकिन जब हम उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्मोटिक प्रेशर is the function of solvent concentration, solute concentration, both A and B and none of above। तो इसका आंसर हो जाता है solute concentration। osmotic pressure is the function of the, तो osmotic pressure किसके ऊपर डिपेंड करता है? solute के ऊपर। ठीक है, सॉल्वेंट के ऊपर तो प्रेशर होता ही नहीं, लेकिन अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, बी, करेक्ट। Question number 21, during plasmolysis water moves out from the cell, it is first lost from the, तो सबसे पहले वाटर कहां से लॉस्ट होता है? साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल, वैक्यूल एंड देन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड देन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर ए हो जाता है। सबसे पहले वाटर को लॉस साइटोप्लाज्म में से होता है और उसके बाद वैक्यूल में से होता है। यस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कम से कम 3 से 4 बार ऐसे क्वेश्चन गए हैं बड़े बड़े वाले इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए। बोथ ऑस्मोसिस एंड इम्बिबिशन आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन, करेक्ट है। इफ it were not for the pressure due to the imbibition, seedling would not have able to emerge out soil in the open, करेक्ट है। अगर इम्बिबिशन के कारण प्रेशर जनरेट नहीं होता तो सॉइल के अंदर सीड प्रॉपर्ली जर्मिनेट नहीं हो पाती। थर्ड, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड अफिनिटी बिटवीन द एब्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज अ प्री रिक्वेस्ट। मतलब कोई भी सब्सटेंस को वुड के अंदर जाने के लिए पहले एक दूसरे की पोरोसिटी समझना जरूरी है, फिर ही वाटर अंदर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस 22 नंबर का आंसर डी हो जाना चाहिए, नन ऑफ अबव, क्योंकि तीनों के तीनों सेंटेंस करेक्ट है, रॉन्ग एक भी नहीं। तो डी देखते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 23, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑस्मोसिस। यस। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस ड्यू टू, तो वाटर पोटेंशियल क्यों बढ़ता है? ठीक है, इवोपरेशन के कारण, एडिशन ऑफ सॉलिड्स के कारण, प्रेशर के कारण और नन ऑफ अबव। कम ऑन, वाटर पोटेंशियल जनरली क्यों बढ़ता है पता है? जब हम वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है? प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर के कारण ज्यादातर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो मतलब अगर उसमें हम कोई सॉल्यूट ऐड कर दे तो क्या जनरेट होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल। लेकिन वाटर में ऑलरेडी प्रेशर होता है गैस का, तो फ्लो होने में स्पीड मिलती है, तो इसके लिए प्रेशर अगर ज्यादा हो तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका आंसर सी हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 25, ड्राई वुडन स्टैक ड्राइव इन क्रैक्स ऑफ अ रॉक एंड सॉइल will develop pressure that will split the rock and you can say phenomenon, such phenomenon, ऐसा कुछ होगा। गलती से यहाँ पे कुछ गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है, देखो, ड्राई वुड को अगर वाटर के पास रखो तो वाटर जनरली अंदर एब्सॉर्ब करेगा, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इम्बिबिशन। यस, करेक्ट। So question number 26, which one is the unit of measurement of a water potential? Osmotic pressure। तो वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? केल्विन, जूल, पास्कल और लीटर। तो वाटर पोटेंशियल मैंने आपको कल पढ़ाया होता है, वाटर पोटेंशियल का पास्कल, PA शॉर्ट में लिखते हो, पास्कल यूनिट यूज करते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 27, potential energy of a water is osmotic potential, water potential, gravity potential, pressure potential। potential energy of a water is, so actually potential energy of a water मतलब ही water potential। इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को जो चेंज द वॉइस कर दिया हुआ है आंसर ढूंढने के लिए, तो इसका आंसर बी हो जाता है, water potential। क्वेश्चन नंबर 28, osmotic pressure of a solution is,
मतलब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? मोर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट है ना? अब आप ये देखिए, ये मेरे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है। इस पानी की बोतल में जो इस पानी की बोतल में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूट है ही नहीं। मतलब ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर इसमें अंदर में कोई सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, मान लो शुगर या तो सोडियम क्लोराइड या तो कोई जलजीरा जैसे कोई पाउडर ऐड कर देता हूं, खट्टा मीठा कोई पाउडर ऐड कर देता हूं, तो इसके अंदर सॉल्यूट ऐड होने के कारण क्या जनरेट होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या है? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ अ प्योर वाटर। प्योर वाटर से ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि प्योर वाटर में तो प्रेशर होता ही नहीं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कब डेवलप होता है? जब सॉल्यूट हम ऐड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए, मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यस, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्योर वाटर 2% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज, 10% सोडियम क्लोराइड। तो मान लो इस पानी बोतल में मैं अगर 100 ml पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर देता हूं, तो उसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा प्योर वाटर से? नहीं। अगर 100 ml पानी में मैं 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड करता हूं, तो उसमें वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं, फिर भी घटेगा। और अगर 100 ml पानी में मैं 10 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड लिक्विड हो या पाउडर फॉर्म में उसमें ऐड कर दूं, तो क्या वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं। वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की फ्लो होने की स्पीड। तो ये सबसे ज्यादा कब होगी? जब वाटर में क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ए, प्योर वाटर। क्वेश्चन नंबर 30, ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस इन अ वाटर स्वेल ड्यू टू। अगर हमने कोई ड्राई सीड्स को पानी में रख दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्वेल हो जाएंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो अगर आपके पास बादाम है, आलमंड, और आप रात को उसे पानी में भिगो के रखते हो, तो मॉर्निंग में वो स्वेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज इम्बिबिशन। यस, हमारे पास जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स, किशमिश, तो किशमिश को भी अगर हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो भी सेलो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट मूंग वगैरह होते हैं, चना होते हैं, उनको अगर हम पानी में भिगो के रखते हैं तो सीड को पानी में भिगो के रखते हैं तो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेती है, उसे हम कहते हैं इम्बिबिशन। तो इसका आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 31, osmosis is a flow of a solution from higher concentration to the solution of lower concentration through selective permeable membrane. What is incorrect in the statement? Exact concentration of solution is not given. Character of a selective permeable membrane is not given. Flow of a solution is not possible through selective permeable membrane. D, all of above. तो देखो, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, और ये जरूरी भी नहीं है। तो सेंटेंस ए तो सही है ही। कैरेक्टर ऑफ द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट गिवन। कैरेक्टर तो बात की बात है, लेकिन सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन आता ही नहीं ऑस्मोसिस में। तो इसका सी देखिए, फ्लो ऑफ अ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज पॉसिबल थ्रू द सेमी परमेबल। तो इसका जो सी सेंटेंस है ना, वो मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है। यस, सी गलत है। तो हमारा आंसर सी है, बिकॉज हमें गलत सेंटेंस सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, a cell placed in a solution gets deplasmolized, the solution is। अगर हम कोई सेल को कहीं पे रखते हैं, एक सॉल्यूशन में रखते हैं, और अगर वो सेल डीप्लाज्मोलाइज हो जाती है, तो उसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा? उसमें सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। क्यों? अगर वो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती तो वो सॉल्यूशन होता हाइपरटोनिक, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल सेल का वो बाहर चला जाता। लेकिन डीप्लाज्मोलाइज में क्या होता है? सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर से लिक्विड से कम है, तो बाहर का लिक्विड अंदर आ जाएगा, तो सेल जो है स्वेल हो जाएगी, फूक जाएगी ना। सो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाइपोटोनिक। यस। Question number 33, if a cell get reduced in size when placed in solution, the solution is। अब ये उसका क्वेश्चन का उल्टा हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हाइपरटोनिक। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, in an elegant experiment, if a twig bearing a white flower is placed in a colored water
and head, watch it turn color. This experiment very easily demonstrated that the path of a water movement is through xylem, the path of water movement is through phloem, the path of food transport is through phloem, and both A and C. क्या बन जाता है इसका आंसर? इसका आंसर बन जाता है ए, द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू जाइलम. यस, मान लो इस बोतल में आपने कलर रखा हुआ है और आपने इसके ऊपर व्हाइट फ्लावर रखा और उस व्हाइट फ्लावर का जो नीचे का रिसेप्टेकल है वो नीचे आपने छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वो कलर ऊपर जाएगा व्हाइट फ्लावर में, और अगर आप उसे बीच में से कहीं कट करते हो तो कलर आपको दिखेगा. तो ये क्यों? द पाथ ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इज थ्रू फ्लोएम. तो ये ऊपर की तरफ जाता है ना, इसके लिए हमें ऐसा कलर दिखाई देता है. तो इसका आंसर इसका आंसर मतलब ए हो जाता है. ठीक है, द पाथ ऑफ वाटर मूविंग थ्रू दी जाइलम. जाइलम के ऊपर, जाइलम ऊपर क्यों लेके जाता है? बिकॉज जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, और वाटर और मिनरल बेसिकली रूट में ही अवेलेबल होते हैं. सो रूट से लेके ऊपर तक जाइलम कंडक्ट करता है, इसके लिए इसका आंसर ए बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो फिर से इनकरेक्ट है, पता नहीं करेक्ट ये पूछ ही नहीं रहे आज. ठीक है, तो हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो. तो ये तो सही सेंटेंस है. सिंपलास्ट मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर. करेक्ट, एपोप्लास्ट से सिंपलास्ट थोड़ा स्लो होते हैं. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑब्जर्व इन सेल्स of the hydrilla of leaf. The movement of the chloroplast due to the streaming is very easily. Cytoplasmic streaming observed in the cytoplasmic streaming observed in the cells of the hydrilla leaf. The movement of chloroplast due to the streaming is easily visible. ये भी सेंटेंस सही लग रहा है. आगे वाला पढ़ लेते हैं. The movement of water through the root layer is ultimately apoplast in the endodermis. करेक्ट है, रूट के थ्रू एपोप्लास्ट में जाता है. तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इससे गलत है, लेकिन ये वाला इसके कंपेयर में सही है. सही है, यस. तो डी वाला सी से ज्यादा रॉन्ग है, तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे. देखते हैं, यस डी सही है. क्वेश्चन नंबर 36, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैनॉट बी डन बाय डिफ्यूजन अलोन. Diffusion is a slow process. The movement of molecule across the typical plant is about 50 micrometer takes place approximately. तो ये मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया हुआ था कि नियर अबाउट 50 माइक्रोमीटर प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2.5 सेकंड्स यूज होते हैं. तो 2.5 सेकंड में से 50 माइक्रोमीटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका आंसर सी हो जाता है 2.5 सेकंड. क्वेश्चन नंबर 37, long distance transport of a water, mineral and food is generally carried out by. तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? long distance transport of water, mineral and food is generally carried out by diffusion only? No. Active transport only? No. Bulk flow system or mass flow system? Cytoplasmic streaming supplemented by active transport. इसका आंसर मुझे सी लग रहा है, बिकॉज हम बल्क में ज्यादा, बल्क का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में मास फ्लो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब फूड को ज्यादा क्वांटिटी में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. सी, यस. क्वेश्चन नंबर 38, द बल्क मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वॉस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसअमाइनेशन, ट्रांसपोर्टेशन. तो इसका आंसर भी ट्रांसलोकेशन हो जाता है. जस्ट बिकॉज हम बल्क क्वांटिटी में अगर फूड मटेरियल को लीफ में से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ये बल्क क्वांटिटी मतलब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा. ए, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स आर ट्रांसलोकेटेड बाय. हार्मोन्स आर ट्रांसलोकेटेड बाय. तो इसका आंसर जाइलम होना चाहिए. बोथ जाइलम एंड फ्लोएम नहीं, सीओ2 एलिमेंट नहीं, सिर्फ जाइलम होना चाहिए. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ उन्होंने मिनरल सॉल्ट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के बात कही है. तो मिनरल सॉल्ट ये मिनरल में आ गया, तो मिनरल और वाटर को कंडक्ट करने का काम जाइलम का है, फ्लोएम का नहीं. देख, यस करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 40, वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विथ मिनरल सॉल्यूट्स. वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विथ मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर, partially by diffusion and partially by active transport. Partially by facilitated diffusion and partially by
एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्योरली बाय डिफ्यूजन, प्योरली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वाटर जो अंदर आता है सॉलिड के थ्रू, सॉलिड के साथ कह लो आप, वाया रूट हेड्स, तो ये प्योरली बाय डिफ्यूजन होता है। इसमें फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कहीं पे भी रोल नहीं आता, तो सी आंसर हो जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 41, once water is absorbed by the root heads, it can move deeper into the root layer by two distinct pathway। मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ था कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये दो पाथवे होते हैं जिसके थ्रू वाटर रूट हेयर से प्लांट के पिथ तक अंदर जाता है। वन इन जाइलम एंड सेकंड इन फ्लोएम, वन इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव, वन इज एपोप्लास्ट एंड सेकंड इज सिम्प्लास्ट, वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज वेसल। तो इसका आंसर सी हो जाता है, यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच पाथवे इन्वॉल्व इन सेल वॉल एंड इंट्रासेल्युलर स्पेसेस? वास्कुलर पाथवे, प्रोटोप्लास्ट पाथवे, सिंपलेस्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। 42 का आंसर इसमें एपोप्लास्ट पाथवे आ जाता है। इंट्रासेल्युलर है ना, सेल्स के बीच में का गैप में से। क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम इज। तो सॉइल टू जाइलम से वाटर की मूवमेंट कैसी होती है? मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम नहीं, पहला मेटाजाइलम कम, पहले तो सॉइल आएगी ना। तो देखिए सॉइल सिर्फ सी में ही है, सॉइल, उसके बाद रूट हेयर, सही है, उसके बाद कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो सी आंसर सही आ जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 44, गटेशन इज मेनली ड्यू टू। तो गटेशन किस चीज के कारण होता है? गटेशन प्लांट में रूट प्रेशर बढ़ने के कारण होता है, यस। सो इट इज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू, मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट देखते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल डज नॉट अकाउंट फॉर देम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर इन रूट प्रेशर। तो ये सेंटेंस गलत है। ट्रांसपायरेशन पुल डज नॉट अकाउंट फॉर देम वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर रूट प्रेशर। तो मतलब ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो जनरली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, और काफी सारे प्लांट है जो वाटर प्रेशर को बेसिकली अचीव कर लेते हैं। वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज कॉल्ड गटेशन, while vapor it is called transpiration। सेकंड सेंटेंस तो सही है। Beside the loss of water, vapor in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in you can say lane also occur through stomata, सही है। When guard cells become flaccid, stomata close, and if turgid, stomata open। तो ये सही है। तो ए वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, यस। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट means sap from root to the aerial parts of plant body. It is called ascent of sap. It was given by cohesion. It was given by Dixon and Joly, and the theory is called transpiration pull and cohesion tension theory, given by Dixon and Joly. D, correct. Question number 47, which of the following is not purpose of transpiration? इनमें से कौन सी चीज का ट्रांसपायरेशन का पर्पस नहीं? सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, help in translocation of sugar from source to sink, and transport of mineral from soil to all parts of plant body। तो इसमें help in translocation of sugar from source to sink, ये काम उसका नहीं, because generally ट्रांसपायरेशन में हम वाटर नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं, फूड को ट्रांसलोकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है, यस। क्वेश्चन नंबर 48, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, सही है। चेंज इन पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन गार्ड सेल्स, ये भी सही है। द इनर वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल इज थिक एंड इलास्टिक, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर निकल के आता है डी, ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन। रूट में प्रेशर सबसे ज्यादा कब होता है? ट्रांसपायरेशन इन इज हाई एंड एब्सॉर्प्शन इज लो। एब्सॉर्प्शन अगर लो होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी नहीं। ट्रांसपायरेशन इज वेरी लो एंड ट्रांसपायरेशन इज हाई, करेक्ट। ट्रांसपायरेशन कम है लेकिन एब्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता ही जा रहा है,
और ट्रांसपायरेशन अगर नहीं हो पा रहा है या तो स्लो है तो रूट में प्रेशर काफी बढ़ जाएगा, तो बी सही है। ट्रांसपायरेशन वेरी हाई, एब्सॉर्प्शन इज हाई, नो। ट्रांसपायरेशन एंड एब्सॉर्प्शन बोथ आर लो, नो। इसका बी आंसर है, यस। क्वेश्चन नंबर 50, influx of potassium ion into guard cell and exflux of hydrogen ion from guard cell leads to exosmosis, plasmolysis, closing of stomata, opening of stomata। तो इसका आंसर हो जाता है डी, opening of stomata, बिकॉज पोटेशियम आयन अंदर बढ़ने के कारण एंडोस्मोसिस होता है। यस, तो गाइज ये था हमारा चैप्टर, उसके एमसीक्यू जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यू। थैंक यू।